Viewers, good evening. Let's straight tell you about something that has been bothering all of us, should be bothering all of us. It's something serious happening in our politics. The Congress party that often talks about saving the constitution and protecting secularism is now walking a very dangerous path, a path of appeasement that threatens the very idea of India. I will tell you how. The Congress-led UDF has ties with the Welfare Party of India, and the Welfare Party is the political arm of the Jamaat-e-Islami. A leader from Jamaat-e-Islami repeated their old goal. They want an Islamic Republic. Yes, Islamic Republic. They said they have not moved even 1 inch away from this idea. An Islamic Republic means a country run by strict religious laws, not our constitution, not equal rights for all, not the secular democracy we love. Viewers, this goal goes against everything India stands for. But the Congress is in alliance with these people in Kerala for votes and votes alone. And when this Islamic Republic talk becomes, public, Rahul Gandhi and the Congress, they're completely silent, not one word against it. Why? Because they don't want to lose out on votes. Plain and simple. It's vote bank politics. Add to this, viewers, what Rahul Gandhi has said. The government brought a new scheme to help rural poor with jobs. It's called VBG Ramji. But Rahul Gandhi mocked it. He said he doesn't even remember the name of the scheme, doesn't know what it means. He said it. He laughed it off as just some slogan. Ram, think of the word, viewers. Ram is not just a name for many Indians. It stands for justice, righteousness, the dream of a Ram Rajya. A society where everyone is treated fairly, where the poor are protected, where the truth wins. For millions, it's deep in our culture and heart. When Rahul Gandhi mocks a scheme that uses Ram in its name, it feels like he's mocking something sacred to a large part of our country. Viewers, there is more. Look at Asaduddin Owaisi, who Congress often works with or shares stage with. Owaisi said recently that one day a woman wearing a hijab will become or should become the Prime Minister of India. That's his dream. Now, no problem with that. I said it last evening, our constitution allows it. But why link the Prime Minister's post to hijab? That's the problem. Why make religious dress the symbol? Now, viewers, if you put it all together, alliance with a group that wants an Islamic Republic and silence from the Congress, mocking Ram and schemes linked to it, calling them, something to laugh at, working with people who dream of a hijabi Prime Minister as a big symbol. What does that show? A party that is happy to insult Hindu feelings and Sanatan values to get votes from one community. They call Ram and Ram Rajya polarizing or, bigoted. But they have no problem with calls for hijabi Prime Minister or stay silent on Islamic Republic ideas. Is this secularism? It is clearly not. This is selective silence. Viewers, this is appeasement for votes. Sample what has been said. विधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। Let's open this up, viewers. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, is here with me in the studio. Ashwini Kumar Mishra ji, leader of the Congress Party. IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party. Mohammad Nafis Ansari, leader of the AIMIM. Haji Rangrez, senior leader of the Congress Party. Ravi Srivastav ji, and Karan Verma completes the panel. संजू वर्मा, मैं आपसे ही शुरू कर देता हूं. आज आप स्टूडियो में भी हैं. राहुल गांधी से पूछा गया, वो एक्चुअली स्पीच दे रहे थे, उन्होंने बोला जी राम जी है क्या?
उससे पहले जो उनका एक एलाय है केरला में, उन्होंने बोल दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक में क्या प्रॉब्लम है. हाउ डू यू सी दिस? Pranesh, I think the most important thing is that earlier there was a pretense. Now there is not even the pretense of a pretense. Rahul Gandhi is Hindu-phobic and he has no qualms in admitting as much. Let's not forget one thing, that he's refused to be a part of the parliamentary panel which will visit Ayodhya. Point number one. Point number two, you will see Rahul Gandhi next year doing his temple yatra ahead of Uttar Pradesh elections in 2027, because he knows that, if nothing, at least he has to win voters by virtue of the optics being right. The third and very important point is this. Who went to the Supreme Court saying, Prabhu Ram to hai hi nahi? Prabhu Ram ke astitva par kisne sawal khada kiya tha? It was the Congress party. It was Rahul Gandhi's acolytes. Who went to the Supreme Court saying, Ram Setu never existed. It's a figment of the imagination of the Hindu community. Again, it was Rahul Gandhi and the Darbari ecosystem. And my final point is this. I always say this. Why is it that in India, with a 79% Hindu population, we still have to prove that Prabhu Ram ka janm Ayodhya mein hua tha, Prabhu Krishna ka janm Mathura mein hua tha? I don't think that, people who follow Jainism, they have to prove that, Mahavir Jain, their Tirthankara, was actually born in Kundagram, which is modern-day Vaishali in Bihar. Or, followers of Gautam Buddha, they don't need to prove that Buddha was born in modern-day Lumbini near Nepal. ऐसा भी तो हो सकता है, राहुल गांधी जी को नहीं पता होगा ये जी राम जी स्कीम क्या है. उन्होंने बोल दिया, I don't know what this means. तो राहुल गांधी जी प्रणेश रॉय के बड़े विख्यात शो के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहती हूं that VBG Ramji is actually 100x better than Manrega for the simple reason, just one point. Manrega used to give gainful employment for only 100 days to a rural household. In the case of VBG Ramji, that is 125 days, which is a 25% increase. But not just that. People forget there is a mandatory 60-day blackout period in VBG Ramji, which means that actually a person gets paid for 125 plus 185 days. Vis-a-vis just 100 days, which is what you were getting paid for under Manrega. So, Rahul Gandhi, economics is not your cup of tea. Don't even try to go onto a tricky terrain. So, what is his cup of tea? What do you think is Rahul Gandhi's I will tell you what is Rahul Gandhi's cup of tea. Rahul Gandhi's cup of tea is, Lok Sabha 2024 में हम तो डूब गए सनम, पर इस बात की खुशी जरूर है कि नरेंद्र मोदी सरकार को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया. इस बात का दर्द नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं है, that for the first time in 62 years a man called Narendra Modi became prime minister for the third time in a row. Okay. इस बात का बिल्कुल भी राहुल गांधी को इंट्रोस्पेक्शन तो दूर की बात है. राहुल गांधी इज अबव ऑल ऑफ दिस. वो जननायक हैं. हाजी रंगरेज, हाजी साहब आप नाराज क्यों हैं? आज आप नहीं वो सब जवाब बाद में दीजिएगा. आप बोलिए आप नाराज क्यों हैं? आप नाराज लग रहे हैं. मैं नाराज इसलिए लग रहा हूं कि हमारी जो सरकार है, भारत की सरकार, और जो मोदी जी की सरकार है, जो कैबिनेट है, वो नाम बदलने में बड़ा विश्वास रखती है, काम करने पे उनका कोई विश्वास नहीं है. मनरेगा का नाम राम जी कर दिया. अरे मनरेगा में आप लोगों को काम नहीं दे पा रहे. मनरेगा कौन लाया था? सारी कांग्रेस ने, कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी के लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं. आप नाम मत बदलिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए. जब रोजगार की बात करते हैं आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगेंगे. लोग महंगाई की बात करेंगे तो आप 80-20 में बांटने लगेंगे. लोग कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सही होना चाहिए तो आप कहेंगे क्या नाम ले, आप जो है हिंदुओं को जो है मुसलमानों से डर दिखाएंगे. तो ये राजनीति बंद करिए. आप मुद्दों की राजनीति करती है. ठीक है, चलिए हाजी साहब, मैं समझ गया था आप नाराज हैं, कोई बात नहीं. अब सवाल यह है कि ओवैसी कह रहे हैं कि एक हिजाब वाला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं. आपके जो अलायंस पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक में क्या प्रॉब्लम है?
देखिए, मेरा कहना यह है, जब इस देश में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो आरएसएस के लोग हैं वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं देश में, तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे सरदार भाई हैं, सिख भाई हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। एक वर्ग जो है मुसलमानों का वो कह रहा है कि हिजाब वाली पीएम बननी चाहिए, तो सबकी अपनी अपनी राय है और सब अच्छा, अपने खालिस्तान की भी जो वो राय है वो सही है कि खालिस्तान बनना चाहिए। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं कि खालिस्तान क्या है? मैं कह रहा हूं जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको प्रनेश भाई के मांगे उठ रही हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात बंद कर दीजिए करनी। लगातार कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? आप एक गांव हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते जब तक देश में संविधान है बाबा साहब का। तो ये जो आप एजेंडा सेट करते हैं, लगातार हिंदू भाइयों को बताते हैं हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सब लोग फिर डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र की जो डिमांड है, नहीं एक मिनट, हिंदू राष्ट्र के डिमांड को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर से कहा कि देखिए आप कहिए इस्लामिक रिपब्लिक चाहिए हमको। अश्विनी मिश्रा। प्रणेश जी, आई होप आपने संजू जी को 3-4 मिनट अनइंटरप्टेड टाइम दिया है, जबकि डिबेट इस विषय पे है कि कांग्रेस ने ऐसा कहा। तो मुझे लगता है 2-3 मिनट अनइंटरप्टेड मुझको भी देंगे। आप 5 मिनट बोलिए आज, 5 मिनट। आप लोग थकते नहीं हो क्या कि रोज सुबह आकर के हिंदू जी आप थकते नहीं हो रोज आकर के कि उसकी फूफा के ताई के बेटे ने, मौसी ने हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल दिया, चलो इस पे डिबेट करते हैं। देश के जो कोर इश्यूज हैं, दिल्ली में देखा हमने, एक वीडियो वायरल हो रहा है कैसे हालात हैं। नोएडा में एक लड़का डूब गया, यहां पर इंदौर में बच्चे जहर के पानी पीने से मर रहे हैं, दवाइयों में जहर मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है देश में। पर हम रोज सुबह आकर के हिंदू मुस्लिम की डिबेट ही करते हैं। जमीन में जहर है, हवा में जहर है, सब जगह जहर है। मैं तो शुक्र करता हूं कि मोदी जी राहुल गांधी जी की तरह रोड पे नहीं निकलते हैं। अगर निकले उनके पैरों में जहर लग जाएगा तो बहुत सारे लोग जो चाटुकारी का सिस्टम कहीं मर ना जाएं। इसलिए मोदी जी रोड पे निकलते नहीं है, क्योंकि पता है मिट्टी में भी जहर है। क्योंकि आप डिबेट कर ही रहे हो संजू जी, एक ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहां जाएंगे तो वो एंटी हिंदू हो जाएंगे, यहां जाएंगे हिंदू का दिखावा करेंगे, जैसे यही शंकराचार्य हैं। क्योंकि शंकराचार्य की क्या हालत उन्होंने कर रखी है, हमने सबने देखा अयोध्या में क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है। और रही बात राम को प्यार करने के एक्रोनिम की बात हो रही ना, जी राम जी एक एक्रोनिम ही है ना, चाहे वो ग्राम जी बोलो चाहे जी राम जी बोलो, कहने को तो एक्रोनिम राष्ट्रीय अंधभक्त मोर्चा भी राम होता है। विल यू इंडोर्स दैट? लेट्स रिनेम भारतीय जनता पार्टी टू राम, राष्ट्रीय अंधभक्त मोर्चा। यू ऑल विल लव इट। What is the problem in that? So एक एक्रोनिम का ऐसा बनाया जा रहा है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको 5 मिनट इसीलिए दिया क्योंकि आप जितना बोलेंगे आपके पार्टी को उतना फायदा होगा। आप वो हम देख रहे हैं, 2014 से हम देख रहे हैं, इसे हाजी रंगरेज ने शुरू किया, ये आप लोगों को ये ट्रिपल डिजिट में लेके आए। आप और अगर 2-3 मिनट बोलोगे तो आप 400 पार हो जाएंगे इस बार। आपने कितने आसानी से कह दिया, ये एक एक्रोनिम में तो है, वैसे ही एफिडेविट में लिख दिया था। करण ने क्या कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, क्या माइंडसेट है ये? नहीं, देखिए, एक तो पहले अश्विनी जी ने अभी कहा अगर हम एक्रोनिम बना दें राम जी के नाम पे तो क्या वो मान लिया जाएगा? अश्विनी जी की हिम्मत नहीं है ये वाला भद्दा मजाक करने की किसी और मजहब के लिए। इनकी हिम्मत नहीं होगी किसी और पैगंबर या किसी पे, और करना भी नहीं चाहिए। पर ये चीज हरकत सिर्फ हिंदू पे कर सकते हैं, ये इनकी मानसिकता। आज आपको पता है राहुल गांधी ने कहा क्या वहां? मैं चाहता हूं पूरी आप अगर चला सकें उसको। ये क्या नाम रखा है उसका? ये क्या नाम है? राम है? क्या नाम है? जी राम जी क्या है वो? द मॉकिंग एंड द डिराइडिंग वे इन विच राहुल गांधी स्पोक टुडे, प्रणेश। एंड एक बात कही जाती ना प्रणेश, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, खोए वही जो राम रची रखा। ये जब राम से दूर हो गए तो इनकी हार निश्चित हो गई। आज 95 हार तक पहुंच गए हैं, बट तब भी राम के साथ नहीं जुड़ पाई है। ये बाबर की मजार पे जरूर जाएंगी। इनकी पिछली 4 पुश्तें बाबर की मजार पे गई हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी खुद हो, बट राम मंदिर पे नहीं जाना, इवन अगर पार्लियामेंट्री कमिटी जा रही है। अश्विनी जी सेट ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो आप करते हो। रेवंत रेड्डी सेज दिस पार्टी इज फॉर मुस्लिम्स। मनमोहन सिंह सेज द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स। कौन करता है हिंदू मुस्लिम भाई? आप कर रहे हो हिंदू मुस्लिम। एक एंटी हिंदू पार्टी जो भी हुई है प्रणेश, उनके साथ कांग्रेस ने अलायंस किया है। AIUDF, वेदर इट वाज Ajmal's party, Badruddin Ajmal's party, whether it was Furfura Sharif's party, whether it was even Owaisi's party before 2012, IUML, every single party that has proclaimed that we will annihilate the Hindus, the Congress goes and forms an alliance. And Pranesh, I raised this, one of the
few people early on who raised this, that Jamaat-e-Islami is the one that is massacring the Hindus in Bangladesh. For all those from the Congress who were crying those tears, those false tears, they have an alliance with the Welfare Party, which is an arm of Jamaat-e-Islami here in India. And in fact, V.D. Satishan has been so shamelessly brazen about it that when Pinarayi Vijayan asked him that how can you form an alliance with them, he said they must have turned secular. So Ashwini ji, look within. That is your definition of secularism. You have refashioned anti-Hindu as secular. No, I began by saying all of that, what the Congress does with the Welfare Party of India. This is exactly what they followed with the SDPI, the political arm of the banned PFI. रवि श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं. अश्विनी जी, आप 3-4 मिनट लास्ट टाइम आपने बोला था, एक सवाल का जवाब नहीं दिया. अब जो करण वर्मा कह रहे हैं उसका आप जवाब देंगे. कैन यू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, दिस डिरिजन about any other faith? You can't. It is not about Ram, and stop asking for the votes in the name of Ram. सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं. ये इनके डिप्टी सीएम बैठे हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बोला. इनके योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हनुमान जी दलित हैं, और बार बार ये माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हमने राम को मिथिकल बताया. राम को नहीं माना. मैं मोदी जी का एक वीडियो चला देता हूं. यार, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि जो माइथोलॉजी है ये राम और हनुमान की कथाएं हैं, माइथोलॉजी हैं. सो स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म. You are the destroyer of Hinduism. Okay, is the Congress protector of... No, 1 minute. Ashwini ji, is Congress protector of Hinduism, Sanatan? आप बोल दीजिए ना, बीजेपी से नहीं हो रहा है, हम हैं. आप बोलिए, आप हैं. Congress is protector of India. Congress protects everyone's right. We don't divide India on the religious ground. Okay. Congress protects everyone's Listen right. to Rahul Gandhi, then I'll bring in the others who haven't spoken. This is what Rahul Gandhi said. और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता हूं. इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या. और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता हूं. इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या. जी, अपने नेता के लिए तो सम्मान दिखाइए. जब राहुल गांधी की बाइट चल रही है तो आप क्यों उसमें ऊपर से बोल रहे हैं? क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा है ना, एआई जनरेटेड क्लिप थोड़ी है. से पूछना चाहता हूं, उन्होंने भी आपके चैनल पे झूठ बोला. आपके चैनल पे करण जी ने झूठ बोला. माफी मांगे. यहां बताइए, राहुल गांधी ने कहां बोला कि राम कौन, राम कैसे राम? इस बाइट में कहां पर बोला, बताएं. अब ये 2 बार में आपको नहीं समझ में आया, 10 बार में भी नहीं आएगा. ग्राम क्या नाम है? करण वर्मा या तो माफी मांगेंगे या बताएंगे कहां बोला. वो बोल रहे हैं ये नए कानून का नाम क्या है. वो देखिए ना, हमने लिख भी दिया है. इसका नाम ही नहीं जानता हूं मैं, ये क्या है. चल रहा है बगल में. अश्विनी जी, करण वर्मा ने बोला. अश्विनी जी, इट्स अ ब्रेव अटेम्प्ट, बट इससे होगा नहीं. मोहम्मद मैम, मैं आ रहा हूं आपके. मोहम्मद अंसारी, हिजाब प्राइम मिनिस्टर, हिजाबी प्राइम मिनिस्टर, क्या मतलब है? सर, सबसे पहले जी राम जी स्कीम की बात कर लेते हैं. नहीं, स्कीम, मेरे सवाल का जवाब दीजिए. ये स्कीम पे डिबेट नहीं है, ये सवाल जवाब होता है डिबेट में. मुझे पता है उस स्कीम्स के बेनिफिट्स हुआ, बता दिया आधा संजू वर्मा ने. बाकी हमारे व्यूअर्स को भी पता है. आप हिजाबी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं नहीं जानता हूं, वो बताइए. कह सकता हूं ना सर, हम पाकिस्तान को उसके औकात याद दिलाना चाहते हैं. जिस दिन भारत का प्राइम मिनिस्टर एक हिजाबी महिला बनेगी, उस दिन पूरे विश्व में पाकिस्तान का नाम खराब हो जाएगा. हमारा यही मकसद है कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो और पाकिस्तान को हम नीच दिखाए. इससे बीजेपी और कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है मुझे समझ में नहीं आता. और जिसके पेट में दर्द है वैसे हॉस्पिटल जाके इलाज कराए. और स्कीम का नाम चाहे जो भी, उससे गरीब का फायदा होना चाहिए. और अगर श्री राम जी का यूज करना है बीजेपी वालों को, तो श्री राम जी के नाम से 2 करोड़ रोजगार दे दीजिए. श्री राम जी के नाम से 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दीजिए. और श्री राम जी के नाम से तेल और गैस का दाम सस्ता कर दीजिए. अगर आपको करना है तो ये कीजिए, वरना श्री राम जी का मजाक बीजेपी वाले भी बना रहे हैं और कांग्रेस वाले भी बना रहे हैं. ऐसी राजनीति का एआईएमएम पूरी तरीके से खंडन करते हैं. नहीं, आपकी राजनीति क्या है, उस पे तो कम, जितना बोला जाए उतना कम है. आप लोग तो कभी ग्रीन पेंट कर रहे हैं, कहीं करबला ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग. बट मेरा सवाल वो नहीं है. मैंने हिजाबी, जो आपसे सवाल पूछा, हिजाबी प्राइम मिनिस्टर, बिना हिजाब के कोई महिला क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकती है? उससे देश का भला नहीं होगा? सर, हमने कब कहा बिना? सर,
हमने कभी नहीं कहा कि बिना हिजाब वाली पीएम नहीं बन सकती है। ये हमारा विजन है। देखिए, देश का भला एक हिंदू महिला भी कर सकती है, सिख भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर हिजाब वाली महिला देश का भला करेगी, देश को रोजगार लाएगी, देश का नाम आगे बढ़ाएगी, इससे देश का नाम रोशन होगा। इससे किसी को क्या दिक्कत है? आप चाहे तो साड़ी वाली को बनाइए, घूंघट वाली को बनाइए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो हम चाहते हैं, हमारा विजन है कि पाकिस्तान को औकात याद दिलाए। हिजाबी महिला अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो जो भी बाकी जो रिफॉर्म्स की बात होती है, क्या आप लोग उसके लिए मान जाएंगे? फिर आप ट्रिपल तलाक का सम्मान करेंगे? महिलाओं के लिए जो राइट्स हैं उसके लिए आप लोग आगे रहेंगे? पहले क्लेरिफाई कीजिए, रिफॉर्म से क्या मतलब है आपका? ट्रिपल तलाक, विमेन्स राइट्स, जेंडर एम्पावरमेंट, और बताइए। Can I come in, Pranesh? इस्लाम भाई, हमारा देश का संविधान तो ऑलरेडी हिंदू मुसलमान औरत मर्द को इस्लाम का संविधान की बात करते करते इस्लाम में, एक मिनट, संविधान में मानते हैं आप अंसारी जी? संविधान में मानते हैं ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। संविधान में यूसीसी लिखा हुआ है, बोलिए। यस, हम सम्मान करते हैं यूसीसी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप एक खास धर्म के लिबास को थोपना चाहते हैं, इससे हमें दिक्कत है। अगर स्कूल का ड्रेस ब्लू होगा तो हिजाब वाली महिला ब्लू हिजाब पहनकर पहुंच जाएंगी, लेकिन आप अगर डिसाइड कीजिएगा, लेट मी कंप्लीट, अगर आप डिसाइड कीजिएगा यूसीसी के अकॉर्डिंग एक लड़की को स्कर्ट ही पहनकर आना पड़ेगा, तो हम नहीं मानेंगे। आप लगता है अभी इंटर्नशिप में ये पार्टी का नुकसान करेंगे आप लगता है बॉम्बे में 95 सीट जीतने के बाद वो सेंस ऑफ यूफोरिया गया नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आपके जो असद साहब हैं सदर, वो हाजी रंगरेज जानते हैं, वो वहीं से निकले, वो हंस रहे हैं। संजू वर्मा, आप जवाब दीजिए। Pranesh ji, I just want to say that Rahul Gandhi's Hindu phobia is well evident from this. One of the closest alliance partners of the Congress is the DMK, and I will never get tired of saying this. Udayanithi Stalin compared Sanatan Dharma to dengue, malaria, rabies, COVID. Madras High Court ने तो Udayanithi Stalin को जमकर सुनाया. But that is not the point. The point is Rahul Gandhi and the Darbari ecosystem consumed Fevicol. They did not condemn Udayanithi Stalin. And this is not all. Senthil Balaji said Hindus are uncivilized. T.R. Balu said Hindus are a menace to society. And Pon Moody, again a very senior member of Karunanidhi's government, he said, ये जो हिंदू है ना, he did not say Hindi speaking. He said Hindus are coming to Tamil Nadu and selling son papdi. मुझे पता नहीं सोन पापड़ी बेचने में इतनी क्या बुराई है, but look at the derogatory nature in which Hindus are being demonized. And this is the same Congress party, not limited to Digvijay Singh alone. Osama bin Laden ji, मुख्तार अंसारी जी, आतिक अहमद जी, मसूद अजहर जी, याकूब मेमन जी, नहीं प्रणेश प्लीज, नहीं मैम, 2-3 लोग और भी हैं मैम। 30 सेकेंड्स मोर। जो कांग्रेस वाले यहां बैठकर या दरबारी इकोसिस्टम वाले बैठकर बोलते हैं हम मुस्लिम महिलाओं को एम्पावर करना चाहते हैं, लेट मी रिमाइंड यू, विल लीव यू विद जस्ट वन एग्जांपल। अ वुमन कॉल्ड नजमा हेप्तुल्ला, she was the longest serving deputy chairperson of the Rajya Sabha, was totally sidelined by the Congress party. Narendra Modi ji ne unhe minority affairs minister banaya from 2014 to 2016. 2016 to 2021 she was the first woman governor of Manipur, and in 2023 she became the first woman vice chancellor of Jamia Millia. आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया बताइए? अंसारी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। आप शायद कंसल्ट कर लीजिए अपने पार्टी से, क्योंकि आप जो बोल गए हैं अभी टीवी पे वो पार्टी की आइडियोलॉजी से थोड़ा दूर है। हाजी साहब जानते हैं, इसीलिए वो पार्टी से अलग हो गए हैं वो। आईपी सिंह जी, सर केरला में ये आप लोग तो इंडिया अलायंस है, उसमें लेफ्ट भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस तो है ही। कांग्रेस का अलायंस है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, और जो जमाते इस्लामी है उसने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक में क्या दिक्कत है। तो आप बताना चाहेंगे इस्लामिक रिपब्लिक में कोई दिक्कत है, या इस्लामिक रिपब्लिक क्या है? मुझे भी 2 मिनट का वक्त जरूर दीजिएगा, आज सर पूरा आरक्षण है, आप बोलिए, 3 मिनट बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे अभी
हमारे पैनलिस्ट मित्र बता रहे थे कि फला की मजार पर, ठिकाने की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। अरे भाई, बीजेपी के भीष्म पितामह हैं, जो 2 से लेके 300 सीटों तक भाजपा गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो जब पाकिस्तान गए तो वहां जिन्ना की मजार पर उन्होंने चादर चढ़ाई थी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ इलाका गाजीपुर, ये अखबार देखिए, ये नवभारत टाइम्स है, मैं जरूर कहूंगा कि इसको नोटिस के लिए ले। बीजेपी की प्रवक्ता, ये प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मतलब अगर 2 कदम आगे बढ़ाइए तो गाजीपुर लग जाता है बनारस से। सैकड़ों बच्चे अपाहिज हो गए, बुखार से पीड़ित हैं, वहां केमिकल से लेके इतनी बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उदासीन है, जिस तरह से संत महात्माओं, इस्लामिक स्टेट अगर आ जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक में ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि इस्लामिक रिपब्लिक ही ये सॉल्यूशन है इसका? मेरा सवाल वो था, और आप जो कह रहे हैं ये दिक्कतें आ रही हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, तो इस्लामिक रिपब्लिक ले आना चाहिए, वो इसका इलाज है। रवि श्रीवास्तव जी, आप मुंब्रा से बैठे हुए हैं क्या हमारे पास? आपके पीछे पूरा हरा है। अच्छा है, हरा तो झंडे का रंग है भाई, क्यों नहीं हरा होना चाहिए? नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, मैं तो बस पूछ रहा हूं कहां से आ रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपके स्टूडियो से आ रहा हूं, चिंता मत करिए, वहां भी सब हरा ही हरा है। चलिए सर, हम सेक्युलर बात तो ये कि ये जो आप सारे, आपको तो सेकुलर ही होना चाहिए। अफसोस तो यही है कि आप कम्युनल हो जाते हैं एंकर बनने के साथ ही, बाकी आप बाहर निकलते हैं स्टूडियो से सेकुलर हो जाते हैं फिर से। हाँ सर, ए.आर. रहमान की तरह आप भी बोल दीजिए कि वो काम नहीं मिल रहा है इसीलिए, बट जवाब दीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक मतलब क्या होता है सर? किसने बोला कि हिंदुस्तान में बन रहा है इस्लामिक रिपब्लिक? उसकी तो राजधानी कैपिटल जो है मदीना में है। इस्लामिक रिपब्लिक यहां कहां बन रहा है? और इस्लामिक रिपब्लिक कौन बना रहा है यहां पे? वो तो अपनी राय दे रहे हैं एमएलए की, भाई हमारे इस्लाम जो बिलीवर्स हैं, पता नहीं उन्होंने ये कब कहा कि बिलीवर्स, किस चीज के बिलीवर्स, क्यों जो इस्लामिक रिपब्लिक मांग रहे हैं? भाई बिलीवर कह करके छोड़ दिया उन्होंने कि भाई बिलीवर जो है वो चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक बने। हिंदुस्तान में तो एक ही रिपब्लिक है, हिंदुस्तान, जिसके सब हिस्से हैं, जिसमें एक सेकुलरिज्म है, हर आदमी को बोलने की आजादी है, हर आदमी को अपनी राय देने की आजादी है। आपने बोला कांग्रेस का सपोर्टर वो WFI पार्टी, वेलफेयर पार्टी, अरे वो बीजेपी के सपोर्टर तो महबूबा मुफ्ती थी बुआ जी, और किस किस के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया है देश के अंदर, वो नाम गिराने शुरू करूं तो आपको पता लग जाएगा। नहीं, आप वो सब करते रहिएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने कहा कि वो आइडिया है, कोई भी अपनी राय रख सकता है। कोई अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल भी दे, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बोले, तो उसको आप लोग कम्युनल टैग कर देते हैं कि ये देखिए, ये व्यक्ति देश में पीस और हार्मनी खराब कर रहा है। वो राय ठीक है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र वाली राय? वो भी गलत है, वो राय भी गलत है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना कभी बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, ये सारे धर्मों का देश है। ये अभी आप सर्वधर्म, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये फर्स्ट, एक मिनट, मैं उनसे वो लेयर्स में सवाल पूछ रहा हूं, आप वो बीच में हटा देंगे, वो निकल जाएंगे लेयर से। रवि श्रीवास्तव जी, चलिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बात बताइए, जो बोलते हैं सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, इसमें सही बात है, गलत बात है? कि ये भी राय है, हो सकती है? ये भी राय है, हर एक आदमी को हक है अपनी बात कहने का, हर एक आदमी अपनी राय दे सकता है। आप उसके ऊपर देश की ओपिनियन थोड़ी बना सकते हैं। कोई हाफिज सईद को भी अच्छा कह रहा है, कोई कसाब को भी अच्छा कह रहा है, तो हर आदमी की अपनी राय है। सही बात है, मोदी तेरी टब खुदेगी राय है। का नाम जो है ना रवि श्रीवास्तव नहीं, राय श्रीवास्तव कर दीजिए। VI में ही बस आपको वाई जोड़ना है, ये राय श्रीवास्तव है या मौलाना श्रीवास्तव। नहीं प्रणेश, एक बात बताइए मुझे, दिस इज टिपिकली एंटी नेशनल। जैसे होता है ना, हिडमा अमर रहे, ये भी एक राय है। अजमल कसाब के लिए खड़े हो जाते हैं, ये भी एक राय है।
ये राय ऐसी राय नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं होता दैट इट इज कंप्लीटली अनफिटर्ड। मिस्टर रवि श्रीवास्तव, ये समझ लीजिए, अगर आप एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ अलाइन करते हैं तो ये गलत है। जब ये बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक है, क्या इस्लामिक रिपब्लिक में ये सब टीवी पे आ सकते हैं प्रणेश? और आप सोचिए जरा, इनको क्रिमिनल लॉ में इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए होता, AIMIM वगैरह को भी इनको चाहिए पर्सनल लॉज पूरे एंजॉय करने। इनको इस्लामिक लॉ कहां चाहिए? जहां 4 शादी की बात हो, इन सब में इस्लामिक लॉ चाहिए इनको, 3 तलाक की बात हो। अगर है इस्लामिक लॉ चाहिए इस कंट्री में, बोल देना कल को हम अगर चोरी करते हैं हमारे हाथ कटवा दीजिएगा आप। वहां नहीं चाहिए इनको इस्लामिक लॉ, इन्हें पूरे मजे चाहिए भारत के संविधान के, जहां ठीक लगे, एंड साथ में दे वांट टू शाउट फ्रॉम रूफटॉप्स। आई एम ओनली वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन टू मिस्टर अंसारी आफ्टर द डिबेट। His term said everything that Mr. Owaisi does not endorse. हाजी साहब, आप तो इस पार्टी के बारे में 1-2 चीज जानते हैं, आप उनको, अंसारी जी को कुछ बताइए। वो बोल रहे हैं यूसीसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्होंने गलत, उनको पता नहीं है पार्टी के बारे में, यूसीसी के खिलाफ है। और मैं भले ही किसी भी पार्टी में रहूं, मगर हम यूसीसी का तो हम समर्थन कभी कर ही नहीं सकते। और यूसीसी की जरूरत जो है, हमारे देश के जो मंत्री थे कैबिनेट के, उन्होंने बाकायदा हलफनामा देके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक जुमला है जो लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में इस तरीके की बातें लगातार। नहीं, ये जुमला कहां लिखा हुआ है? यूसीसी का जुमला कौन सी किताब में लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड बी डन। ये भाजपा के पास एक तुरुप का इक्का है। यूसीसी, राम मंदिर, कश्मीर, धारा 370, ये सारे मुद्दे बीजेपी के शुरू से एजेंडे में रहे हैं। इन पर वो लगातार आप देख ही इसका रहे कोई होंगे। जवाब ही नहीं। हाजी रंगरेज ऐसी चीजें बोल रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए मैम। दो, ये हिंदू राष्ट्र है, और इसलिए है बिकॉज 1995 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा ने साफ शब्दों में कहा, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन अलोन और अ रिलीजियस आइडेंटिटी। और जो लोग यहां बैठकर एक हिजाबी महिला, no, 1 minute, Sanju Verma, there's a fine difference. He said it about Hinduism and Hindutva. He did not say it about Hindu Rashtra. No, Hindu way of life. He did say of course that. there is no debate on that. He did not use the word Hindu people Rashtra. have a problem with even Hinduism. Forget Hindutva. Of course they have a problem. Point is this, Pranesh ji, 1 second. जो यहां बैठकर कहते हैं हिजाबी महिला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, पहले AIMIM का अध्यक्ष एक हिजाबी महिला को बनाकर दिखाइए। हिम्मत है? और अपनी महिलाओं को नमाज पब्लिक में, मस्जिद में मर्दों के साथ करने की खुली छूट दीजिए। वो तो टाई और वो पहन के बैठे हैं। करण, डोंट लाफ, डोंट, 1 मिनट। AIMIM 2.0 है अंसारी साहब। बोलिए मिस अंसारी। जी बोलिए ना। मैं कहता हूं बीजेपी नेता से, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो भारत दुनिया पहला ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां हिंदू खतरे में, क्योंकि दिन रात ये लोग कहते रहते हिंदू खतरे में। अपना जवाब थोड़ा ढंग से दीजिए। अरे वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए ना अंसारी साहब। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हिजाबी प्रधानमंत्री चाहिए, तो आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को भी वहां से ट्राई कर सकते हैं, एम्पावरमेंट। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे इस्लाम में तो औरत को पहले एम्पावरमेंट बना दिया गया है। हमारे इस्लाम में कहा गया हिजाब पहनकर आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई रोक टोक नहीं है। और मर्दों को कहा गया आप भी हिजाब करो, अपना नजर को नीचे झुकाओ। ना हम किसी के माँ बहन को देखते हैं और ना किसी आदमी को अपने माँ बहन को देखने देते हैं। ये हमारा इशू है, इससे आपको क्या करना है? हमारी महिलाओं को भी मस्जिद जाने की इजाजत है। अगर मुसलमान मस्जिद जाने नहीं देते, ये उनकी प्रॉब्लम है। इस्लाम में इजाजत है, नहीं, मुसलमान उनकी प्रॉब्लम कैसे हो गई? नहीं हो सकता। नहीं, ये तो देश की प्रॉब्लम है ना सर, ये तो महिलाओं की प्रॉब्लम है ना। ट्रिपल तलाक को आप कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस है हमारे रिलीजन में, ये कैसे हो गया? इंटरफेरेंस कैसे हो गया? ट्रिपल तलाक को आप सही मानते हैं, गलत है? हिजाब ट्रिपल तलाक सिस्टम इस्लाम में है ही नहीं। ट्रिपल तलाक जब बिल आया था तो असद साहब ने क्या कहा था कि इसमें टेक्निकल इशू है, आप उस आदमी को जेल भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं वो उसका मर्द भी नहीं है, फिर आप उसको 3 साल जेल भी भेज रहे हैं। टेक्निकल इशू की बुनियाद पर हमने उस बिल के खिलाफ बात की थी। शाहबानो के खिलाफ हमने बात Do you support the चाहिए। Shah Bano इसके लिए judgment? लोग एडुकेट करने Yes or no? शाहबानो Do you support the Shah Bano judgment? Yes or no? अब आप सुनिए शाहबानो केस की रियलिटी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। शाहबानो केस में, शाहबानो केस का सबसे बड़ा इशू क्या था सुनिए।
आप 1 मिनट बोलने दिए। शाहबानो बोलिए। केस का सबसे बड़ा इशू ये था कि इस्लाम में ये बताया गया कि जब कोई औरत शादी करती है उसको दिन महर के नाम पर रकम दिया जाता है, लेकिन इंडिया में मुस्लिम महिला रकम ही नहीं लेती है। आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख लेकर मर्द से शादी कीजिए, मर्द बारात नहीं लाएगा, ना ही मर्द यहाँ पर डौरी लेगा, बल्कि मैं बता रहा हूं, आप अगर 5 हिजाबी प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना, तो भी इस माइंडसेट से कुछ नहीं। आप पहले माइंडसेट बदल लीजिए। माइंडसेट में आप लोगों ने हिजाब लगा लिया है, वहां से पहले हिजाब निकालिए, तभी कुछ होगा। और अंसारी साहब, ये जो प्रोग्राम हो जाएगा इसको रिपीट पे सुनिए आपने क्या क्या कहा है, क्योंकि आपकी पार्टी अभी आपको शो कॉज तो करेगी कि आप क्या प्रॉमिस करके आए हो नेशनल टीवी पर। करण, लुक एट द रिफॉर्म्स दैट ही हैज इन हिज माइंड। कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो रिफॉर्म की बात क्यों करें? नहीं, ये तो पक्का हो गया प्रणेश दैट ये इंटर्न ना केवल AIMIM में भी, इस्लाम में भी ये इंटर्न है ये। अब मैं जरा बता दूं एक बात, AIMIM, the 2 legislators from AIMIM are the only 2 who voted against the women reservation bill in parliament. And Mr. Asaduddin Owaisi, when he stood up in parliament, he said triple talaq is a violation of Article 29, which is my cultural right. How can you take away my cultural right? Talaq-e-biddat is a part of my culture. That is what Owaisi said. He doesn't know that. By the way, All India Muslim Personal Law Board, of which Mr. Owaisi has also been a signatory and has approved, they've passed resolutions that 2 witnesses of women are equal to 1 male witness. Can you imagine this? They will get half the inheritance compared to a man, as per Quranic principles, by the way. So this is what the AIMIM and the All India Muslim Personal Law Board has been. अंसारी साहब, ये To add to what Karan said, सदी का प्रॉपर्टी में आपके धर्म में कहां लिखा है? कहां लिखा आपके धर्म में? नहीं, अंसारी साहब नहीं, छोड़ दीजिए। एक देखिए, नहीं, आप जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो तो डेंगी, एड्स, लेप्रेसी है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। आप अपने धर्म की बात कीजिए। उसमें जो करण आपसे सवाल पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 2 महिलाओं का वोट इज इक्वल टू 1 मेल वोट, ये सही है? जितनी आबादी उतना हक। वो गवाही के तौर पर है, कोई बात नहीं। हाँ, वो गवाही के तौर पर, इसमें क्या दिक्कत नहीं तो गवाही में नहीं तो गवाही में भी तो बराबरी होनी चाहिए ना। आफ्टर इंटेलिजेंस, ये इनका मानना है, ये सोच है। प्रणेश जी, जरा पूछिए जरा 1 मिनट। अंसारी साहब, ऐसा क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है? में इस मामले का क्या इशू है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। ये क्यों है कि 2 महिला विटनेस इज इक्वल टू 1 मेल विटनेस? ये क्यों है सर? क्योंकि मर्द उस टाइम में बाहर घूमते थे, औरत नहीं घूमती थी। मर्द जानता है कहां क्या हो रहा नहीं हो रहा है। घर में रहती है तो हिजाबी, तो सर हिजाबी प्रधानमंत्री क्यों बना रहे? फिर बना दीजिए ना किसी। बहुत बड़ी बात करी इन्होंने। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं तो बोल रहे हिजाब वाली महिला रोड़ा नहीं बन सकती है। हिजाब किसी के आगे दीवार नहीं है। आप हिजाब डिग्निटी के साथ आप PM बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, लेकिन आप इनसे पूछिए इनके अंसारी साहब, डिग्निटी का क्या करोगे जब माइंडसेट में प्रॉब्लम है? अब आप 2 इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं, ऐसे कहां से होगा? मैं हाजिर अंग्रेज, ये सही है या ये चेंज होना चाहिए? I need to come in for 20 मैम 1 मिनट, ये रिफॉर्म हम ला रहे हैं, यहाँ पे टीवी पे रिफॉर्म कर दे रहे एक बार। हाजी साहब, देखिए प्रणेश भाई, सबको अपनी अपनी बात रखने। जी बताइए जी, फरमाएं प्रणेश भाई। दो मुस्लिम महिलाओं का जो वोट है इज इक्वल टू 1 मुस्लिम मेल वोट्स, ये क्या है सर? ये सही है गलत है? देखिए, मैं इस्लाम का जानकार तो नहीं हूँ, ये तो बेकार की बात है। हम सब इन पे चर्चा कर रहे हैं। बात हो रही थी कि किस चीज पे बात हो रही थी, मनरेगा पे बात हो रही थी। अभी तक आप इस्लाम के जानकार थे, अभी एक सवाल आया उसमें आप, अच्छा, और जो हमारे पास सेक्युलर लोग हैं उनसे पूछ लेते। अश्विनी जी, ये सही है या गलत है ये फॉर्मूला? बस इतना बोलिए। आप कुछ भी पूछेंगे, मैं कुछ भी जवाब दूं। आप बताइए, हमारे शादी में महिलाएं 7 वचन लेती हैं, पुरुष 1 वचन लेता है, सही है या गलत है? व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस प्रणेश? हर किसी की अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, हर किसी की बिलीव्स हैं। लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट, लेट मी एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ संजू वर्मा जी। नहीं, 1 मिनट, ये इतनी बड़ी रिफॉर्म की इशू है, हाउ कैन यू नॉट हैव एन ओपिनियन? No, what आई थिंक कुछ बची रही होगी। बोलिए संजू वर्मा। हाँ, लेट मी। नहीं, ये कहना चाहते थे कि मेरी कोई हिपोक्रेसी एक्सपोज करेंगे। पहले एक्सपोज कीजिए, फिर मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। करिए। लेट मी एक्सपोज, नो, लेट मी अलाउ मी टू स्पीक, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। लेट मी अलाउ मी टू स्पीक, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अरे अश्विनी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए तो प्लीज। यू सेड नजमा हेपतुल्लाह वाज डिप्टी। संजू जी बोल रही है, नजमा हेपतुल्लाह जी
राज्यसभा में डिप्टी चेयर थी, तो कांग्रेस उनकी बेइज्जती की और इन्होंने उनको माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाकर के या गवर्नर बनाकर के इनाम दिया। आप जाके चेक कर लीजिए, व्यूअर्स चेक कर ले कि कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी पोजीशन क्या होती है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और डिप्टी चेयरपर्सन। दूसरी इन्होंने जो बात की कि 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट जी राम जी ग्राम जी जो भी इनकी स्कीम है, उसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि सेंटर जो है 75 दिन का ही पैसा देगी, जो पहले 100 दिन का देती थी। ठीक है अश्विनी जी, आपने एक्सपोज कर दिया, अब काउंटर ले लेते। संजू वर्मा जी जल्दी से। पहली बात तो ये, she was the longest serving deputy chairperson of Rajya Sabha, but when she left the Congress party, she was disillusioned. She had been marginalized. She had been completely suppressed and repressed. And I'm quoting from what she has said ad verbatim. आप नजमा हेपतुल्ला के यहां बैठकर ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश मत कीजिए। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, फाइनली लेट्स नॉट फॉरगेट, बाबा साहेब अंबेडकर की दुहाई हर विपक्ष का नेता देता है, बट यही दरबारी भूल जाते हैं दैट इन हिज बुक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब B.R. अंबेडकर ने कहा था, हिजाब इज द मोस्ट हिडियस पीस ऑफ क्लोथिंग विच लीड्स टू सोशल सेग्रीगेशन। अब अंबेडकर जी के लिए तालियां बजाइए यदि आप सच में अंबेडकर जी में विश्वास रखते हैं। After the comments made by Dr. Ambedkar, the Congress denied him Bharat Ratna for so long. वो punish कर चुके हैं वो. That is their mindset. But let's leave it at this. Ansari Saab, I wish you. AIMIM spokesperson has called for reforms in Islam. But yes, imagine what it takes for a young man to say this. Ansari Saab, more power to you. मैं तो चाहता हूं कि कोई टाई वाला नहीं, कोई ये जो आपने पहना है ना ड्रेस, टाई और जैकेट वाला व्यक्ति भी AIMIM का अध्यक्ष बने। मैं ये भी चाहता हूं। हाजी रंगरेज के पास मौका था, लेकिन वो कांग्रेस में आ गए। जननायक राहुल गांधी है उनके। आप अपने सदर साहब के साथ रहिए और रिफॉर्म्स शायद हम देखें आगे। और भी डिबेट्स होंगे, हम बुलाएंगे आपको। लेट्स क्विकली शिफ्ट